حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہد میں کافی ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ خوشی کے لمحات میں اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ پانی کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اس سے گردے صاف رہتے ہیں۔ نہار منہ گرم پانی پینا بہت ساری بیماریوں میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل سے اپنے ہاتھوں کا کچھ دیر مساج کرنے سے آپ بدن میں سکون محسوس کرنے لگیں گے، خون کی روانی بہترین ہو جائے گی اور ڈپریشن دور ہوگا۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کیا کرو۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لیا جائے تو بڑھاپا نہیں آتا۔ کیلا بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو، طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی لگائیں تو ہلدی کا رنگ سفید ہونے لگتا ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آرام سے کھانا کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانے وغیرہ بن جائیں تو 1 چمچ لے کر اس کو تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دو، یہ جراثیم کو ختم کرے گا اور اس سے خارش بھی نہیں ہوگی۔ کنگھی صبح اٹھتے ہی کر لیا کریں، اس سے خون کی روانی بہتر ہو جاتی ہے۔ نماز فجر کے بعد المجید 99 بار پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لیں، ہمیشہ صحت و عافیت سے رہیں گی۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو دیسی گھی سے مالش کیا کریں، درد میں آرام ملے گا۔ بدن پر بدنما داغ دھبے دور کرنے کے لیے کیلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگائیں، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ سب چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جسے غصہ زیادہ آتا ہو تو سمجھ جائیں اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی بیماری اسے کھا رہی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جامن کی گٹلی چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدے میں تیزابیت ہو جائے تو نہار منہ دہی میں اسپاغول ڈال کر کھا لیا کرو۔ دہی میں پیسے ہوئے بادام ملا کر لیپ بنا لو اور جھریوں پر لگاؤ، صرف 1 ہفتہ استعمال کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسبگول کا چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف شامل کر کے پیو، بخار اتر جاتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغ کی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماری قریب نہیں آتی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پینے سے جسم کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس میں ذرا سی چٹکی بھر ہلدی بھی شامل کر سکتے ہیں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے
और बढ़ा हुआ पेट भी कम हो जाता है। मुंह की चिकनाई दूर करने के लिए चावलों वाले पानी से मुंह धो लो। हर खाने के बाद नींबू का रस चूसने से चेहरे की झुर्रियां दूर हो जाती हैं। हर खाने के बाद पुदीने की चटनी खाएं। इससे जिस्म में थकावट नहीं होगी और आपका मैदा भी ठीक रहेगा। जो लोग मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। जो लोग अपने बालों में बहुत कम कंघी करते हैं, उनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। सौंफ का पानी पीने से दिमाग को सुकून मिलता है और मोटापे को कम करता है। जिसकी औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून के तेल में पका कर खाए। कद्दू खाया करें, ये सब्जी दिमाग को कुव्वत देती है। आटे को ज्यादा बारीक पीसने से आटे की ग़िज़ाइयत कम होती है। अंगूर मर्दाना कमजोरी के लिए मुफीद है। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने से पेट की गैस और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। खाने से पहले एक फल खा ले, बदन में कमजोरी जिंदगी भर नहीं होगी। छाइयों पर फूल गोभी का रस लगाने से छाइयां दूर होती हैं और रंग निखर जाता है। आज के जमाने में हाथ से खाने वाले को लोग पसंद की निगाह से नहीं देखते, जबकि साइंस इसे इंसानी सेहत के लिए मुफीद करार देती है। सुबह नमाज फजर के बाद आसमान की जानिब मुंह करके थोड़ी देर देखो और सांस को रोको। इससे दमे का मर्ज दूर हो जाता है। चारों मगज का तेल सर पर लगाने से आपका दिमाग तेज हो जाएगा और नींद भी पुरसुकून आएगी। प्लास्टिक के बर्तन में खाना डालोगे तो प्लास्टिक पिघल कर खाने में शामिल हो जाएगा, जो कि बीमारियों का बाइस बनेगा। बीमार आदमी को हदिया देने से आपको सुकून और आराम मिलता है। टेंशन लेने वाले को मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है। दाल का सालन खाने के बाद दूध पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पीने से चेहरे की शादाबी तकरीबन 80 साल तक बरकरार रहेगी। एक कहावत है कि जब आप चाहो तो दूर जा सकते हो, लेकिन जब आप चाहो वापस नहीं आ सकते। मीठी चीज और शहद खाया करें, क्योंकि ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह पाक मलाइका के सामने अपने उन बंदों पर फख्र करते हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। रोजाना सोने से पहले जैतून के 2 दाने एक गिलास नीम गर्म दूध के साथ खाने से बवासीर जैसी बीमारी से निजात मिल जाती है। दही मैदे की तेजाबियत को दूर करती है और वजन को भी कम करती है। आलू कम से कम इस्तेमाल करो, क्योंकि ये बादी होता है। घर में सफेद कलर का पेंट करो, आपके घर में मच्छर दाखिल नहीं होंगे। सर की जुओं से बआसानी निजात के लिए थोड़ा सा काफूर सरसों के तेल में मिक्स करके बालों में लगाएं तो जुएं मर जाएंगी। अक्सर मसाने की कमजोरी हो जाए तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से मसाने की कमजोरी दूर हो जाएगी। ज्यादा बातें करने वाले से लोग तंग आ जाते हैं। चेहरे का रंग सांवला हो तो चेहरे पर नींबू का पानी लगाकर सो जाओ। चेहरा गोरा और चमकदार नजर आने लगेगा। एक तहकीक के मुताबिक कोई भी औरत किसी बात को ज्यादा से ज्यादा 50 घंटे तक राज रख सकती है। अपने घरों से कूड़ा करकट उठा दिया करो, क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू होता है और शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। सर्दी के मौसम में जब मौका मिले, धूप में बैठ जाओ। धूप इंसानी बदन को बेतहाशा ताकत देती है। केले का छिलका उतार कर लंबाई में चीरा लगा दें और इसमें चुटकी भर राई भर दें। अब बावजू होकर इस केले पर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और केले को किसी साफ बर्तन में मलमल के कपड़े से ढांप कर रात को औस शबनम में रख दें, खुली छत पर। सुबह निहार मुंह इस केले को खा लें। इस तरह 3 दिन केले खाने हैं। चौथे दिन जाकर अपना टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह यकान का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। जो रोटी से कबल पानी पीता है, ऐसा बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता और हमेशा जवान रहता है। हजरत अली रसी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, जब कोई उम्मीद ना हो तब ज्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मौजे खुदा की शान है।
الٹی मतली या पेट में दर्द हो तो इलायची चबाकर ऊपर से पानी पी लें, पूरी तरह आराम आ जाता है। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म हो जाती है, लेकिन अगर ज्यादा चॉकलेट खा ली जाए तो ये गले में खराश का सबब भी बन सकती है। बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता हो तो उसे जामुन का शरबत पिलाएं। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर की शिकायत हो जाती है, और शाम के वक्त प्याज का इस्तेमाल बहुत सी जिस्मानी बीमारियों का बायस भी बनता है। लेकिन अगर प्याज को दिन के वक्त इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म को बहुत सी बीमारियों से बचाता है। हजरत अली रसी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। शाम के वक्त चावल ज्यादा खाने से पेट फूल जाता है और गैस का मसला हो सकता है। सुबह के वक्त दही इस्तेमाल करने से मैदा तंदुरुस्त रहता है, हाजमा ठीक होता है, दिन भर थकावट महसूस नहीं होती, मसाना मजबूत होता है, बुढ़ापे की वजह से टांगे कमजोर नहीं होती, जिस्म में जवानी जैसी ताकत रहती है। अगर किसी के सर में जुओं का मसला हो वो चमेली का तेल इस्तेमाल करे। चमेली के इस्तेमाल से सर की जुओं का खात्मा हो जाता है। रात के खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चूस लिया करे, इंशाल्लाह बदहजमी कभी करीब नहीं आएगी। खारिश वाली जगह पर प्याज मसल दो, खारिश खत्म हो जाएगी। बादाम का तेल गालों पर लगाया करो, आपके गाल नर्म मुलायम हो जाएंगे। टांगों में कड़ोल पड़ना, पिंडियों का दर्द या पट्टों का खिंचाव हो तो 7 दाने इंजीर के पानी में डालें, पूरी रात इसको भिगा रहने दें और सुबह को ग्राइंड करके इसको इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन इलाज है। अगर बाल छोटे हों तो एलोवेरा का रस पानी में शामिल करके बालों पर लगाओ, बाल घने, लंबे और मजबूत हो जाएंगे। रात को खाना खाने के बाद कुछ देर चहलकदमी करने का अपना मामूल बना लें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। जलेबी खा लेने से जोड़ों के दर्द में अफाका होता है। अगर मैदे की कमजोरी का सामना हो तो सागुदाना का इस्तेमाल जरूर करें। ये मैदे को सेहतमंद रखता है और निज़ाम में बहुत मदद देता है। अगर भूख की कमी का मसला हो तो आम का अचार खा लेने से जल्दी भूख लगेगी, और पके अमरूद खाने से मसाने की कमजोरी दूर होती है। मछली का सालन इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। पानी में अर्के गुलाब डालकर नहा लेने से कभी बदन से बदबू नहीं आएगी। सुबह निहार मुँह एक खजूर खाने से जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। रात को होठों पर जाफरान लगाकर सोने से होठ गुलाबी रहते हैं। वजन और मोटापा कम करने के लिए शहद में नींबू का रस मिलाकर पी जाएं। 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। काली मिर्च का रोजाना इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज्यादा नहीं होती। वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन जरिया है। शुगर के मरीज लोग लहसुन इस्तेमाल करें, ये बदन में इंसुलिन की मिकदार में तवाज़ुन रखता है। रात के वक्त अनार खाने से आपके दिमाग को बेतहाशा ताकत मिलेगी। चेहरे पर लाल दाने निकल आए तो कच्चा दूध लगा लो, दाने निकलना बंद हो जाएंगे। काले हाथ पांव पर उठनी का दूध लगाने से हाथ पांव सफेद हो जाएंगे। अगर निहार मुंह मुंह धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे मिला दिए जाए तो चेहरे की जिल्द नरम मुलायम हो जाएगी। गन्ने का रस दिन में 3 बार पीने से ही आंखों में कशिश आती है। अगर आवाज बैठ जाए तो 7 बादाम, 7 काली मिर्च और मुनासिब चीनी मिलाकर चबा लें, आवाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर दही निहार मुंह मिश्री मिलाकर खाएं तो बच्चे गोरे पैदा होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, जो अपने गुस्से पर गालिब आ जाए वो शैतान पर फतह पाता है, और जो अपने गुस्से से मगलूब हुआ शैतान उस पर फतह पा गया। देसी अंडे की सफेदी दूध में मिलाकर पीने से बहुत फायदा होता है, और दूध को जलेबी के साथ खाने से सर दर्द ठीक हो जाता है, और पट्टों के खिंचाव में कमी आती है और जहनी सुकून मिलता है। मैदे में दर्द का मसला हो तो टिंडे का सालन बनाकर खाने से दर्द रुक जाएगा। मुंह के छाले ठीक करने हैं तो खुश्क धनिया चूस लिया करें। सर पर हल्का सा गरम करके तेल लगाने से अकल बढ़ जाती है। चने की दाल पीस कर
चेहरे पर लेप करें, चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे। नमक खाने से बदन पर एलर्जी हो जाती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो जब भी नहाओ, नहाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया करो। समुद्री नमक चाटने से वजन कम होता है। रोजाना खीरा खाने से लकवा नहीं होता। केला खाने के बाद एक दाना छोटी इलायची खा लेने से केला फौरी हजम हो जाता है। केला खाने से कुव्वत बाह में इजाफा और दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। नहाने से पहले बालों में तेल लगा ले, इससे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। पट्टों में दर्द का मसला हो तो दोपहर के वक्त धूप में बैठकर काली मिर्च को चबाया करो। अगर शहद की मक्खी काट ले तो इस जगह पर सरसों के तेल की मालिश किया करें। औरतों में खून की कमी हो जाए तो इनको रोजाना खजूर खिलाएं। शुगर से बचना चाहते हो तो हमेशा भूख रख कर खाना खाओ और गर्म खाना खाने से परहेज करो। रोमन औरतें अपने चेहरे पर फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं। इससे चेहरे की मालिश करती हैं। इससे उनके चेहरे की झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। रात के वक्त चावल खाने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। भुने हुए चने में छोटी इलायची मिलाकर खा लें। बार बार पेशाब आने का मसला नहीं होगा। जो लोग हमेशा बुखार से बचे रहना चाहते हैं वो चने की दाल ज्यादा खाया करें। बुखार कभी करीब नहीं आएगा। अगर आपको किसी वक्त शदीद बेचैनी हो रही हो तो 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा लें। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करो। कई साल तक झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। दोपहर का खाना खाने के बाद बाएं करवट लेटकर आराम करना चाहिए। गीले कपड़े पहनने से खारिश की बीमारी हो सकती है। जब शौहर अपनी बीवी को प्यार भरे अल्फाज से बुलाता है तो उसकी ये मोहब्बत के अल्फाज तकी से तकी औरत में भी जान डाल देती है। बकरे की चर्बी के तेल से मालिश करने से बाल पूरी जिंदगी सफेद नहीं होंगे। जो लोग ज्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं उनमें बुढ़ापे के आसार जल्दी नमूदार होने लगते हैं। सुबह के वक्त खजूर खाकर घर से निकलने वाले इंसान पर जादू टोना असर नहीं करता। नाश्ते में हफ्ते में 3 से 4 मरतबा गंदुम या जौ का दलिया भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मौजूद लहमियात और ग़िज़ाई रेशे हाजमे को बेहतरीन करते हैं। दलिया शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद है क्योंकि ये शुगर की शरह में कमी का बाइस बनता है। आबे जमजम देखने से नज़र तेज होती है। वजन कम करना चाहते हैं तो उबला हुआ अंडा खाएं। जिस घर में रोटी पेट भर कर खाई जाती है उस घर पर रहमत के दरवाजे बंद रहते हैं। रोज अचार खाकर सोने से 3 दिन में ½ किलो चर्बी कम हो जाती है। दोपहर के वक्त खरबूजा खाने से मैदे की जलन दूर हो जाती है। बकरी की चर्बी खाने से बुढ़ापा 10 साल आगे चला जाता है। नाखूनों को सफेद करना चाहते हो तो नाखूनों को अदरक के पानी में डुबो दो। नाखून मोती जैसे साफ हो जाएंगे। खरबूजे के खुश्क बीज खाने से दिमाग में बेबहा तेजी हो जाती है। जिसको कमर के दर्द की शिकायत रहती हो उसको कैंसर कभी नहीं होता। कौवे के परों को घर के सहन में लटकाने से घर में जिन्नात और आसेब नहीं आते। सीने में दर्द हो तो फौरन सीने पर लहसुन मसल दो, दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। औरत का ऊंची आवाज में बोलना दौलत की लालची होने की अलामत है। बुरा काम करते वक्त बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है। तुलसी का पौधा घर में लगा दिया जाए तो घर में मक्खी मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं आते। पपीते का बीज सांप के जहर को भी खत्म कर देता है। बरगद का दरख्त घर में लगाने से घर में गुर्बत नहीं आती। जो औरत जुड़वा बच्चे पैदा करती है वो कभी गरीब नहीं होती। रोटी खाने के बाद फौरन छींक आ जाना जल दौलत मिलने की अलामत है। छींक आते आते रुक जाना मेहमानों के आने की अलामत है। घर में मकड़ी का जाला बनाना बेबरकती होने की अलामत है।
घर में बिल्ली का चूहे को खाना घर में गुर्बत के जाने की निशानी है। ख्वाब में खूबसूरत औरत देखना जल्द दौलत आने की अलामत है। मस्जिद में बैठकर मछली खाना जायज नहीं है। अपने हाथ के नाखून खाने से कैंसर की बीमारी होती है। मुर्गी को दोबारा गर्म करके खाने से गुर्दे फेल हो जाते हैं। घर में स्याह रंग के खरगोश के बाल रखने से 80 साल तक घर पर काला जादू नहीं होता। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे वहां रिस्क में इजाफा हो जाता है। बाएं हाथ से लिखने वाले लोगों की दिमागी सलाहियतें तेज होती हैं और वो बात को जल्दी समझते हैं। शहद के साथ इंजीर खाने से बदन के अंदर ताकत हमेशा रहेगी। चेहरे पर गैर जरूरी बाल जल्दी आ जाते हैं तो एक मछली के तेल को नहाते हुए मालिश कर लो। 80 साल तक गैर जरूरी बाल नहीं आएंगे। बकरी का दूध बदन को बेतहाशा ताकत देता है और बकरी का गोश्त इंसान को ताकतवर करता है। सब्जी में अरवी बेतहाशा ताकत देती है। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। खाने के बाद पानी पीने वाले लोग अक्सर मोटे होते हैं। बदन को जवान और खूबसूरत बनाना है तो सुबह उठकर 12 मिनट तक पैदल घर के सहन या बाहर चहलकदमी जरूर करें और लंबे लंबे सांस लिया करें। केला कैंसर से बचाव के लिए बहुत मुफीद है। कैंसर के मरीज जरूर इस्तेमाल किया करें। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेने से चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग या कील मुहासे नहीं निकलेंगे। पानी कम इस्तेमाल करने से आपके होंठ काले हो जाएंगे। ऊंट का गोश्त खाया करो, उम्र बढ़ जाती है। जो रोजाना सुबह एक टमाटर रोटी के साथ खा लेता है उसके बाल कभी सफेद नहीं होते। जिन लोगों को हाजमे की प्रॉब्लम हो वो रोजाना गन्ने का जूस पी लिया करें। इसबगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत मिलती है। खट्टी चीजें खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। रोजाना निहार मुंह भुने हुए चने खाने से दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। ज्यादा गुस्सा करना मोटापे का बाइस है। गुस्से से परहेज करें। पाँव के नाखूनों को रोजाना बार बार छूने से इंसान चुस्त व तवाना रहता है। जैतून के तेल में शक्कर मिलाकर होठों पर लगाने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। रात को सोने से कबल वजू करके सोया करो। अस्तगफार की 3 तस्बीह रोजाना पढ़ा करो। इंशाल्लाह कभी रिस्क की कमी नहीं आएगी। 60 साल वाले चेहरे पर गाजर का जूस लगाओ। 4 दिन के बाद चेहरा 20 साल जैसा हो जाएगा। अगर सुबह के वक्त शहद गर्म पानी में मिलाकर पी ले तो इससे आपका वजन कम हो जाएगा और डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी। लोबिया गर्मी को दूर करता है, बलगम को दूर करता है, शुगर के मरीजों को बहुत आराम पहुंचाता है। कमर और गुर्दे के दर्द में बेहद मुफीद है। बंद पेशाब को खोलता है और जिस्म को ताकत देता है। पानी में इसबगोल डालकर पीने से आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। पालक के पत्तों का रस आंखों पर लगाने से नजर तेज हो जाएगी। काजू का रोजाना इस्तेमाल करने से शुगर के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। बेसन के पकोड़े खाने से ताकत मिलती है और सारा दिन जिस्म की टूट फूट होती है वो मुरम्मत हो जाती है। मछली खाने वाले लोग दिल की बीमारी से बचे रहते हैं। गाजर मसाने की खराबियों के लिए फायदेमंद है। खाने के बाद प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो क्योंकि आखिरी लुकमे में भी सेहत होती है। नीम का रस पियो, फुंसियां नहीं निकलेंगी। ज्यादा नमक मत खाओ, दिल कमजोर हो जाएगा। रोजाना निहार मुंह दही खाया करो, पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। सुबह निहार मुंह शिमला मिर्च की तरफ देखो, आपकी नजर तेज हो जाएगी। जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगा देने से छाले नहीं बनते। निहार मुंह किशमिश के 21 दाने खाने से आपका जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। सरसों का साग खाओ, खून की कमी नहीं होगी। जिस घर में औरत को दुख मिलते हैं ऐसा घर बहुत जल्द बर्बाद हो जाता है। मोटी खवातीन 3 चीजें अगर रोजाना खाएं तो वो दुबली पतली हो सकती हैं।
लीमू, अजवाइन और खुश्क मेवा जात। आजकल की नस्ल में बांझपन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसकी असल वजूहात टेंशन, नींद की कमी और बेसकूनी भी है। बांझपन में अखरोट मददगार हो सकता है। मिट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध डालकर पी जाए, बदन में ताकत आ जाती है। मिश्री खाने से याददाश्त तेज होती है। फालिज के मरीज रोजाना शाम 4 बजे अदरक का कहवा जरूर पी लिया करें। छोटी छोटी नेकियां ऐसी हैं जो इंसान की परेशानियों को खा जाती हैं। किसी इंसान का अच्छा सोचना भी नेकी में शामिल है। ये नेकी भी कर लिया करो। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है वो बड़े का गोश्त इस्तेमाल ना करें। अनार निहार मुँह खाओ खून पैदा होता है। दांतों पर नीम की मिसवाक करने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। लौंग, सौंफ और भुने हुए चने सोने से पहले चबाने से जिंदगी में कभी कमजोरी नहीं होगी। चीनी वाली चाय पीने से बहुत जल्दी मोटापा घेर लेता है। आलू बुखारा खून की कमी को फौरन दूर कर देता है। ज्यादा बर्फ इस्तेमाल करने से मैदा कमजोर हो जाता है। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। नींबू के छिलकों का पाउडर बनाकर इसमें नमक मिलाकर ब्रश करने से दांतों की मैल कुचैल और पीलापन दूर हो जाता है। दांत मोती की तरह चमकने लग जाते